एसी कातिल जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। और जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जितनी बल्दिया की दुकानें हैं उनकी नीलामी जो है वो दोबारा की जा रही है। इस हवाले से आज आरिफाला के गोल चौक के अंदर भी जब बल्दिया ने नीलामी के हवाले से दुकानदारों को प्रेशराइज़ करना शुरू किया तो वहाँ पर एक दुकानदार जो है वो परेशान होने के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। मेरे अकब में दुकानदारों ने एहतजाज किया हुआ है। मरने वाला शख्स है जो ताजर है, जिसकी डेड बॉडी मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि वो एम्बुलेंस के अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जब तक एसी के ऊपर और बल्दिया के अमले के ऊपर FIR नहीं दी जाएगी हम लाश को नहीं उठाएंगे। यहाँ पर पंजाब पुलिस और बाकी सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि आज के प्रोग्राम की इस एहतजाज की मुकम्मल कवरेज और मुकम्मल हक़ाइक़ आपके साथ शेयर किए जाएँ। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। ਅੱਜ ਆਰਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਾਰੀਖ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਲਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CEO TMO ਉਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ AC ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਲੈਣਾ AC ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CO ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TMO TMA, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਮੈਰ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ FIR ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ, FIRਾਂ ਚੱਲਣ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਰਵਾਲਾ ਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AC ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਨਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਸੀਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ AC ਆਰਵਾਲਾ, TMO ਆਰਵਾਲਾ, TMA ਆਰਵਾਲਾ, ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਬਲਦੀਆ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਕਤਲ ਦੀ FIR ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਹਿਜ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੇ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ। तालिबान जवाब दो, तालिबान जवाब दो, आप सबको पता है कि आज जुल्म की दास्तान आरीवाला में रकम कर दी गई है। एक मासूम शहरी, एक मासूम बच्चे की आरीवाला की इंतजामिया ने जान ले ली है और उसको शहीद कर दिया गया है। ये जुल्म है। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और एसी और सीओ की गिरफ्तारी तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। उनको एमओ और एसी और सीओ को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये मौत शेख उमैर की मौत नहीं है, ये मौत सारे ताजर कम्युनिटी की मौत है। ये मौत हर ताजर नुमाइंदी की मौत है। हम लोग इंतज़ामिया के साथ कदम ब कदम चलते हैं। जो रियासत का हुक्म होता है हम उस हुक्म को मानते हैं। लेकिन ये जो जुल्म हुआ है, ये एक बंदा आज मरा नहीं है, आज पूरा आरिफ वाला मर चुका है और मर तो चुके हैं। लेकिन आज के बाद सुन लें, ना बल्दिया की दुकानों की नीलामी होगी, ना कोई इंक्रोचमेंट का मामला होगा, ना इनको हम मानेंगे। ये याद रखिएगा, जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक ताजरों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे, आरिफ वाला बंद रहेगा, आरिफ वाला बंद रहेगा। जुल्म के ज़ाब्ते ज़ालिमों जवाब दो। हम गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, ये बदमाशी नहीं करने देंगे। आज यौम स्याह है। आरब वाला की तारीख़ में एक ताजर हमारे छोटे भाई को इन्होंने कत्ल कर दिया है। क्या ऐसी एमरजेंसी आ गई थी? एक बंदे की दुकान पर जाके उसको इतना थ्रेट किया गया अमैर को। उसकी उम्र देख लें, आपके सामने है, उसकी 30 साल उम्र होगी बेचारे की। ना वो मरीज़ था, वो हमारा भाई था। उसको इन गमाश्तों ने कत्ल कर दिया। हम किसी मसलहत का शिकार नहीं होंगे। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम स्टैंड करते हैं और हमारा मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन को गिरफ़्तार किया जाए, उनके ख़िलाफ़ FIR दी जाए और दहशत गर्दी शहर में फैलाने पर भी दहशत गर्दी की दिफात के तहत उनके ख़िलाफ़ FIR की जाए। हम पीसफुल शहरी हैं, हम पुरअमन शहरी हैं, हम कानून और आईन पाकिस्तान को भी जानते हैं। ये अमलाक, ये अमारात हमारी अपनी हैं। हम किसी को नुकसान पहुँचाए बग़ैर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा हक़ है। हमारा मुतालबा है कि DPO साहब फिलफौर यहाँ पर आएँ, हमारी दादरसी करें। जब तक DPO साहब यहाँ आकर हमारी दादरसी नहीं करेंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अभी हम वहाँ से दरियाँ मंगवा रहे हैं, यहाँ दरियाँ बिछाने लगे हैं, यहाँ बैठने लगे हैं, यहीं पे नमाज़ें अदा करेंगे, यहीं पे बैठे हैं जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता। हम ना किसी चूहा मीटिंग का हिस्सा बने हैं, ना बनेंगे, ना साइड पे बात की है, ना करेंगे। हम आवाम के सामने अपनी बात करते हैं। ये सारे मेरे भाई इस मेयर की मोहब्बत में आए हैं। तो आवाम के साथ हूँ। क्या आवाम ये कहती है कि साइड पे जाके मीटिंग करके ये बात पूछ लें? ये मैं इस अपना शेख साहब ने अपना मुदल्लल तरीके से सारी बात बताई है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि सारा शहर इस टाइम इकट्ठा है। ये CO, AC, इंक्रोचमेंट ऑफिसर्स, ये सारी मिली भगत से यहाँ इन्होंने करप्शन का बाज़ार सरगर्म किया हुआ है। कल भी इन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार रुपया दुकानों से लिया है, ठीक है। और वो अपना जुल्करनैन नामी वो जो है इनका
बल्दिया का मुलाजम, वो आगे कहता है जी ये एसी साहब को हिस्सा जाता है। MOR जो है वो कहता है जी ये अपना एसी साहब को अपना ऊपर हिस्सा जाता है, एसी साहब को हिस्सा जाता है, उससे ऊपर भी अपना हिस्सा जाता है। ठीक है, लिहाजा इस कत्ल की FIR एसी समेत नीचे वाले सारे अमले पे होगी और हमारे वो मुतालबात मान लें। हमें साइड पे लेके जाके भी वही बात करनी, इधर भी साइड पे भी 2-3 अवाम के सामने बात। DPO यहाँ पे आ जाएं। DPO आके यहाँ पर कमिटमेंट करें, हमें कमिटमेंट दें और उसके बाद हम अपना अगला लाहे अमल इंशाल्लाह ताला बताएंगे। गिरफ्तार करें तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे ये आज बल्दिया की तरफ से हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, मैं उसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जना चौक का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये ताजरों ने दोस्तों की कॉल आई है कि MOR साहब अपने अमले के हमरा आकर हमें हरासमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं MOR जो जुल्करनैन चिश्ती साहब के दुकानें आपकी सील करनी है तो अभी आप CDR जमा कराएं। तो हमारे ताजरों ने ये कहा है कि वहाँ पर कि आप हमारी 17 डेज़ है, जो 17 तारीख 18 और 19 तारीख को हमारी ऑक्शन है, तो हम इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक CDR जमा करवाएंगे जब टाइम बर वक्त। तो मगर इन्होंने वो बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा ये दुकानें सील करो। प्रेशर इतना हमला था और इतना प्रेशराइज़ किया बंदे को, बंदा अपना दिल छोड़ गया और वहाँ पर उसको हार्ट अटैक हुआ। और वहाँ से जो ताजर वो जब पता चला हार्ट अटैक हुआ, वो बच्चा गिरा है, तो ये भाग कर दूसरी दुकान पर चले गए। वहाँ पर जाकर कहने लगे ये दुकान सील करो। ये जो हम बल्दिया के किराएदार हैं, आज से नहीं है, मेरे बाओजदाद वहाँ पे यहाँ पे किराएदार थे। 70 साल हो गए हमें, हम उसी के किराएदार हैं और बर वक्त किराया अदा कर रहे हैं। कानून के मुताबिक हर उनकी बात मानी है। इंक्रोचमेंट का मामला है तो हम उनके पासदारी की है। हमें जिन्होंने कहा जी कि हमने आपकी ऑक्शनें करानी है, किराए बढ़ाने, हमने कहा बिल्कुल बढ़ाएं। हम हर तरह के बकायाजात क्लियर किए हुए हैं। लिहाजा तौर पर ये जो जुल्म है, ये ज़्यादती है। क्या ये हम दहशतगर्द हैं? क्या हम इस सारीवाला के, इस पाकिस्तान के शरीफ शहरी नहीं हैं? क्या हमें किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? ये कल भी आए हैं, वहाँ पर जुर्माने और बदअखलाकी और बदतमीज़ी की इंतहा की इन्होंने, और ताजरों की इस तरह हरासमेंट किया है और आगे से बदअखलाकी की वो हदें पार करें हैं। जैसे कि हम समझ तो वाला आ रहा है कि जैसे किसी दहशतगर्द को ट्रीट किया जाता है। क्या ये ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है? हमने कल भी हम DCO साहब के पास, MNA साहब और हादी शाह साहब के साथ गए। वहाँ पर भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमारी तो नेगोशिएट चल रही है कि किस तरह इसको मैनेज करना है, किस तरह इसको मामला को आगे लेके चलना है। तो मगर ये लोग 1 मिनट बाद एक हमला आता है, दूसरी तरफ दूसरा आता है, आते ही आके हरासमेंट करनी शुरू कर देता है, धमकियाँ देनी शुरू कर देता है, सामान उठा लेते हैं। सामान के बाद जो वो लोगों के साथ करते हैं वो बयान नहीं किया जा सकता। खुदा के लिए हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, RPO साहिवाल से, DPO पाकपतन से कि जो MOR साहब हैं, CO साहब हैं और जो अमला वहाँ पर मौका पर गए हैं, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए कानून के मुताबिक। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर ये FIR नहीं देते तो हम इस लाश के साथ, हम भी लाश हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हम ताजरों के साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए। इस पर भी तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। क्या इनको वो कानून व आइन नहीं समझाता कि ताजरों को किस तरह जाके डील करना है? यार हम कोई और मुल्क से तो नहीं आए, हम इंडिया से तो नहीं आए। हाँ जी, हम तो छोटे छोटे कारोबार करते हैं और छोटे ये देखो कौन सा फैक्ट्री है, 60 फुट की दुकान पे बैठे रोजगार कमा रहे, छोटे छोटे रोजगार कमा रहे, फिर भी हमें ये दहशत फैलाते हैं। मेरी मुतालबा है हुक्मरान आला बाला से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मेहरबानी। पीछे आ जाओ। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद थी आरीवाला के काले चौक के अंदर। यहाँ पर जो एहतजाज जारी था वो कंटिन्यू है, मुतालबात कुछ मान लिए गए हैं। अगला जो लाहे अमल है, जो अगला इसका यहाँ का जो माहौल होगा वो वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपके साथ शेयर करेगी। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के।